my loves, what's up and welcome to my channel. I hope you all are doing fantastic. दिवाली तो ख़त्म हुई है लेकिन न्यू लॉन्चेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. So in today's video I'm going to introduce you two new launches by Plum Goodness, and these are their newly launched foundation and concealer. So if you guys are interested to know more about these products, their honest review, pros and cons, and whether you should buy it or not, then please watch this video till the end. Alright, so I know Plum Goodness is many of your favorite skincare brand, but if you haven't tried their makeup range, then you should try it out. They have amazing lipstick collection. They have come up with lip and cheek tint, and now they have launched their face makeup, like base makeup as well. And this is very new in market. I guess YouTube पे 2-3 review videos there. So I just thought of buying these two products. These are not PR. Plum haven't sent me these. I have purchased it with my own money, and definitely I'll try to give you as honest review as possible. So इसके पहले Plum ने उनका Prep Set Go का प्राइमर लॉन्च किया था, और उसके बाद उन्होंने ये कॉम्पैक्ट लॉन्च किया है. बट दीज आर लाइक वेरी बेसिक फेस मेकअप प्रोडक्ट्स. बट बियॉन्ड दैट, इफ यू वांट टू अचीव अ फुल कवरेज लुक or like any makeup look, you obviously need a foundation or concealer or both of them in your makeup look. I'll give you some basic brief about the packaging, shade range and formula, the ingredients as well, and later on you will see the application on my skin. Like I have a bare skin. I haven't applied anything except moisturizer. So this is how the outer packaging of foundation looks like. You will find the shade name and number sticker at the bottom. All the Plum products are skin loving, and so they have clean ingredient lists right mentioned down here. This is how the frosted glass bottle looks like, which contains 30 ml of product, and the best part about it is that it comes with a pump bottle. So I really love to see the brands like Plum, they have come up with these kind of packaging, the pump packaging, because ये बहुत ज़्यादा hygienic है. You can take how much of product you want on your hand. आपको बहुत सारा बॉटल में से लेने का ज़रूरत नहीं है. So this is a very safe packaging, I would say. And I believe ये शेड थोड़ा सा, मतलब I don't know whether it's pink or it's yellow. It's not yellow for sure because मैंने जो शेड पिक किया है that is 105P. This is the first shade. और इसके अलावा मुझे जो बाकी लगे, मुझे लगे वो मेरे स्किन के लिए थोड़े से डार्क हो जाएंगे. That's why I picked up this one. So in foundation right now we have only 7 shades available on their website. एंड आई बिलीव प्लम इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, मे बी टिल 15 और 20. थोड़ी इंक्लूसिविटी बढ़ जाएगी, इनकी शेड रेंज बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को कन्वीनियंट होगा उनका प्रॉपर शेड चूज करने के लिए. The outer packaging of concealer is similar to foundation, and the inner tube looks something like this. It comes with doe foot applicator for easy application. तो इवन कंसीलर में भी उन्होंने सिर्फ 5 शेड्स अभी तक लॉन्च किए हैं, एंड अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनकी शेड रेंज इसमें बढ़ाए. दो इन्होंने दोनों शेड का नेम सेम रखा है, दैट इज हॉलो सैंड, बट इनका जो नंबरिंग है वो इन्होंने डिफरेंट किया हुआ है. द फर्स्ट वन लाइक द फाउंडेशन शेड इज 105P एंड द कंसीलर शेड इज 105Y. In that case, what I can see here is 105P indicates the pink undertone and 105Y. The Y indicates the yellow undertone. And even if you can see the bottle, I don't know how much it is visible, but this is more like a neutral pink undertone and this one looks more like a yellow undertone. So yeah, ऐसा कुछ है, और मैंने जानबूझ के इसीलिए ये शेड किया because my skin tone is मोर ऑफ अ पिंक टू न्यूट्रल, नॉट एग्जैक्टली पिंक. तो मैं यूजुअली न्यूट्रल शेड्स ही प्रेफर करती हूँ, बट इस पर जो फाउंडेशन में जो 130N नाम का शेड था वो मुझे काफ़ी डार्क लगा मेरे कम्प्लेक्शन के लिए. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट पिक इट अप. मैंने ये वाला लिया, एंड देन इफ़ एट ऑल ये बहुत ज़्यादा पिंक या वाइट हो जाता है मेरे स्किन टोन पे, देन आई कैन बैलेंस इट आउट विद द कंसीलर. Alright, so that pretty much information about it. और अभी हम जाते हैं उसका एप्लीकेशन देखते हैं. What I will do is मेरे हाफ फेस पे मैं लगाऊंगी फाउंडेशन और हाफ फेस पे मैं सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी, जस्ट टू सी इनका कवरेज कैसा है, दोनों का कैसा है, कि आप सिर्फ कंसीलर यूज़ कर सकते हो क्या, सिर्फ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो क्या, या आपको दोनों हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत है. Alright, so as I already told you guys, मैंने मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है except moisturizer. So we will start with the primer, though this is not a primer review, but still I want to go ahead with this primer because this is from the same brand. So I'm just taking it very little amount like this because मैंने बहुत ज़्यादा मुझे प्राइमर लगा के ऐसे ही उसका रिजल्ट ख़राब नहीं करना फाउंडेशन का.
तो आई एम जस्ट टेकिंग वेरी मिनिमल अमाउंट, जो मेरे नोज़ के आसपास मेरे बड़े पोर्स है ना, उस पर थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ. नाउ आई एम टेकिंग 2 to 3 पम्प्स ऑफ फाउंडेशन और मैं इसे अपने हाफ फेस पे लगाऊंगी. फिंगर से ये फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. मैं इस फाउंडेशन एप्लीकेशन पार्ट को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू गाइज द रियल ब्लेंडिंग टाइम. ये जो शेड है 105 हैलो सैंड, ये काफ़ी क्लोज शेड लग रही है मेरे स्किन पे. फॉर योर रेफरेंस आई एम इन द शेड मैक NC15. उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरा स्पॉन्जी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड हियर आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग द फाउंडेशन एंड एज यू गाइस कैन सी हाउ इजीली इट इज़ ब्लेंडिंग. रीज़न बीइंग इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये जल्दी सेट नहीं होता फेस पे एंड सो इट गिव्स अ नेचुरल स्मूथ फिनिश. ये फाउंडेशन फुल कवरेज तो डेफिनेटली नहीं है बिकॉज 2 पम्प्स में भी कुछ कुछ मार्क्स है मेरे फेस पे जो अभी भी विजिबल है. सो इट्स अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन विद बिल्डेबल फॉर्मूला एंड यू कैन डेफिनेटली मेक इट फुल कवरेज विद मोर प्रोडक्ट. Now let's move on to the other side of my face and I'm applying the concealer here on all over this side. कंसीलर ब्लेंडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन बिकॉज ये कंसीलर बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्लेंड इट सीमलेसली. दोनों तरफ ब्लेंडिंग होने के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मेरा फेस स्टिकी नहीं लग रहा है. इवन आई हैवंट सेट इट विद पाउडर येट. अब ट्राई करते हैं कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ और वाटर प्रूफ है कि नहीं. उसके लिए मैंने लिया है ये क्लीन टिश्यू पेपर और इसे मैं नॉर्मली अपने स्किन पे डैप कर रही हूँ टू सी इफ़ एनी प्रोडक्ट इज़ कमिंग आउट और ट्रांसफरिंग और नॉट. और पूरे फेस पे डैप करने के बाद आई कैन सी सम फाउंडेशन एंड कंसीलर ट्रांसफरिंग ऑन माई टिश्यू पेपर बट इट्स नॉट हेविली ट्रांसफरेबल. इफ़ यू सेट इट विद मैट कॉम्पैक्ट और ट्रांसलूसेंट पाउडर तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा. अब टेस्ट करते हैं कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं और उसके लिए मैं काफ़ी सारा पानी स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस पे जैसे कि हम बारिश में गीले होते हैं. और मैं वापस क्लीन टिश्यू लेके अब डैप कर रही हूँ ऑन ऑल ओवर माई फेस एंड एज यू गाइज कैन सी इट डेफिनेटली ट्रांसफर्स ऑन माई टिश्यू पेपर अगेन. सो दिस फाउंडेशन एंड कंसीलर इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ. यू कैन कॉल इट एज अ ट्रांसफर रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट. Alright, now I'll go and get my full face makeup done. And I'm back, just like that. So this is how the final makeup looks like. My whole base is of Plum Goodness. I have used all the Plum Goodness product except my eyes and highlighter. So I'll tell you what all I have used. So I have used the foundation, concealer, compact powder from Plum, obviously primer जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है. Then other than that, I have also used this eyebrow powder और Pro Definer. ये भी मैंने प्लम का यूज़ किया है. इफ़ यू सी माई eyeliner, वो भी मैंने प्लम का यूज़ किया है. काजल मैंने ग्रीन और ब्लैक मिक्स किया है बट अगेन काजल एंड मस्कारा दोनों मैंने प्लम का यूज़ किया है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लिपस्टिक, या मैंने ये प्लम का शेड अगेन यूज़ किया है. दिस इज द शेड गिव मी मॉव. नाउ बिफोर वी मूव टू माई फाइनल वर्डिक्ट्स अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, आई वुड लव टू अनाउंस माई बर्थडे गिव अवे गाइज. इट्स बिन वेरी लॉन्ग, आई नो बहुत टाइम हो गया मैंने गिव अवे नहीं रखा, बट दिस इज द राइट ओकेजन एंड दिस इज द राइट टाइम. आई थॉट टू पुट द गिव अवे. आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब पोस्ट करूंगी, बट डेफिनेटली आई विल अनाउंस द विनर्स ऑन माई birthday, that is 3rd of December. If you're already my subscriber, you know my simple rules how to participate in the giveaway. But if you're watching this video for the first time and participating in the giveaway for the first time, then I would like to let you know some very basic rules that I have kept for this giveaway. First thing first, you have to follow me on Instagram and subscribe to my YouTube channel. Third thing, you have to engage on my content across YouTube and Instagram. The active engagement will be definitely considered. ये giveaway का post मैं मेरे Instagram पे भी डालूंगी और YouTube पे भी डालूंगी. Instagram पे जो मैं post डालूंगी वो आपको share करना है आपके friends के साथ. Other than that, बहुत important point ये है कि मैं जब भी गिव अवे चल रहा होगा 1 मंथ के ड्यूरेशन में, तब मैं ब्लॉग सेल रखूँगी मे बी वंस और ट्वाइस. आपको वो पोस्ट आपके स्टोरीज पे शेयर करनी है. आई कीप चेकिंग ऑन दैट कौन कौन मेरी पोस्ट शेयर कर रहा है, कौन कौन उनके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा है मेरे ब्लॉग सेल वाला पोस्ट. सो यू विल गेट अ ब्राउनी पॉइंट्स ऑन दैट. तो ये तो सारे मेरे गिव अवे के रूल्स है, ये मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और अलग से पोस्ट बनाऊंगी जो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी. सो यू गाइज आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इन्फॉर्मेशन. And yeah, invite your friend, engage on my content, tag your friends in my Instagram post, YouTube comments, and invite them to subscribe to my channel, follow me on Instagram. So for all the people who are participating and following these rules and engaging on my content, I'll shortlist some of them and I'll announce 3 winners on my birthday, that is 3rd of December. So stay tuned for the result. Keep engaging on my content across Instagram and YouTube. And now let's get back to our review.
Alright, so this makeup have been on my face for quite some time now, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हो गए हैं. इसके बीच में मैंने 2 रील्स शूट किए हैं. सो या बट कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है, कहीं पे भी क्रीज हो रहा है, नॉट इवन अंडर माई आईज, और कहीं पे भी ऐसा केकीनेस नहीं लग रहा है. बिल्कुल भी मेरे फाइन लाइन्स में वगैरह सेट नहीं हो रहा है ये फाउंडेशन एंड कंसीलर एज वेल. सो प्रोडक्ट वाइज मैं आपको भी बताती हूँ कौन सी चीज़ें मुझे इन प्रोडक्ट्स में अच्छी लगी और बुरी लगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन एंड आई विल डिफाइन देम एज अ प्रोज एंड कॉन्स. So about this foundation, talking about the formula, it is extremely lightweight and they have mentioned that on their bottle, on their website and everywhere that this is a lightweight and ultra light formula. I completely agree with that. This is very lightweight foundation. आपको लगेगा नहीं अपने फेस पे कुछ लगाया है. इवन मैं उसके फाउंडेशन लगाऊँ, कंसीलर लगाऊँ, मैंने लिटरली 3 पंप्स लगा है फाउंडेशन के, फिर ऑब्वियसली 2 बार मैंने कंसीलर लगाया है, देन पाउडर से सेट किया है, बट बिल्कुल भी मुझे मेरा फेस ऐसा केकी हेवी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. लाइक यू कैन सी. Then talking about the blending and coverage, I have found a pro number 2 here. This foundation is very easy to blend because of the very lightweight formula. और इसका जो कवरेज है, मतलब आप अगर फर्स्ट लेयर लगाओगे then this will give you like a light to medium coverage. I won't call it light coverage because इसने काफ़ी अच्छा कवरेज दिया था when I applied it on my face for the first time. So this is a medium coverage foundation. और अगर आप इसके ऊपर और एक लेयर लगाओगे you can build it up to high coverage. Then pro number 3 and the most important thing that I have found that this foundation is non-sticky. मतलब बहुत से फाउंडेशन होते हैं जिनको आपको सेट करना पड़ता है लिटरली पाउडर से और कॉम्पैक्ट से, फिर ही वो कंफर्टेबल होते हैं, नॉन स्टिकी होता है. बट दिस इटसेल्फ, इवन द फाउंडेशन एंड कंसीलर, दिस इटसेल्फ इज़ वेरी नॉन स्टिकी. अगर आपके पास टाइम नहीं है पाउडर लगाने का, कॉम्पैक्ट लगाने का, यू कैन जस्ट गो लाइक दैट. ये बिल्कुल भी आपकी स्किन स्टिकी नहीं करेगा. Even though they have claimed it as a matte finish foundation, but I feel this is a soft matte finish. और भले ये सॉफ्ट मैट फिनिश है बट मुझे काफ़ी हद तक इसने मैट फिनिश दिया है, बहुत ड्यूवी फिनिश नहीं दिया इसने, अच्छा खासा सॉफ्ट मैट फिनिश दिया है. बट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सॉफ्ट मैट फाउंडेशन इसने बिल्कुल भी मेरे स्किन को ड्राई नहीं किया है. वाई? बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक इट कंटेन्स hyaluronic एसिड, विटामिन ई, जोजोबा ऑयल और भी बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें. सो दिस फाउंडेशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर विंटर्स, वेदर यू हैव ऑयली स्किन, यू हैव नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन, ये आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा. देन अनदर प्रो आई हैव फाउंड इन दिस, इट कंटेन्स SPF 15. दो इन्होंने इनके बॉटल पे या इनके आउटर पैकेजिंग पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, बट आई हैव चेक देयर वेबसाइट और वेबसाइट पे लिखा है दैट इट कंटेन्स SPF 15. सो इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ फाउंडेशन अंडरनीथ और आप विंटर में इसको यूज़ कर रहे हो, देन यू आर गुड टू गो. यू डोंट रियली हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन अंडरनीथ. देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव फाउंड हियर दैट दिस प्रोडक्ट इज completely safe for your skin because it's 100% vegan, cruelty free, it's paraben free, phthalates free and what not. जो भी प्लम के बाकी प्रोडक्ट्स होता है स्किन केयर एंड मेकअप, सेम लाइक दैट, इट डजंट कंटेन एनी हार्मफुल chemicals. Then the next pro I have found, and the biggest pro I think I found, is this comes in the pump applicator, so this is very hygienic to use. And the last pro I would say, even though they have like 7 shades right now, but it will be suitable across many Indian skin tones. So those were all the pros, and now let's move on to the cons. And the con number 1 I have found in this foundation that even though they have mentioned on their website, they have specifically mentioned that this product is fragrance free, but it is not. इसमें हल्का सा, not even हल्का सा, हल्के से थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा सा floral daisy kind of fragrance है इसमें. So this is definitely या इट इज़ कमिंग. आप बॉटल खोलते ही आपको फ्रेग्रेंस आ जाएगा, आप जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो तभी भी आपको फ्रेग्रेंस आ जाएगा. सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट. आई डोंट नो इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है या इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स डाला है उसका ये स्मेल है, आई रियली डोंट नो, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट. देन द कॉन नंबर 2 आई हैव फाउंड हियर, इवन दो इन्होंने इनकी पैकेजिंग पे लिखा है दिस इज अ लॉन्ग वेयर फाउंडेशन. इट कैन बी अ लॉन्ग वेयर फाउंडेशन बट इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर प्रूफ और वाटर प्रूफ फाउंडेशन. दिस कैन बी अ वाटर रेजिस्टेंट फाउंडेशन. जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जब मैंने मेरे फेस पे पानी स्प्रे किया और टिश्यू पेपर से डैप किया, देन डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज़ कमिंग आउट. वो मैंने बहुत ज़्यादा रब नहीं किया, बट इवन टैप करने के बाद भी वो दिख रहा था कि इट्स ट्रांसफरिंग ऑन द टिश्यू पेपर. वैसे हमने इसको कौन नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा, बिकॉज दे आर नॉट क्लेमिंग इट टू बी अ ट्रांसफर प्रूफ और वाटर प्रूफ फाउंडेशन, ऐसा इन्होंने क्लेम नहीं किया है इसके अंदर. बट या द फाउंडेशन दैट वी प्रेफर नीड्स टू बी ट्रांसफर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग, राइट.
Then the con number 3 I have found here is their shade range. Like this foundation currently have only 7 shades, which is very 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 limited. अगर मैं बात करूँ प्लम के बाकी प्रोडक्ट्स की, बाकी मेकअप रेंज की, so their lipstick they have 15-20 shades, their eyeliner have multiple shades, you know. सो आई फील फाउंडेशन में उनको थोड़े और शेड एक्सटेंशन करना चाहिए. लाइक इफ आई कैन सी लाइक इट्स वेरी नाइस, दे हैव इंक्लूडेड ऑल दी अंडरटोन्स लाइक पिंक, येलो एंड न्यूट्रल अंडरटोन्स. बट अगर मैं न्यूट्रल अंडरटोन की बात करूँ तो मुझे इनमें सिर्फ एक ही शेड दिखा, दैट इज आई थिंक 130N और समथिंग. तो न्यूट्रल अंडरटोन का इनमें सिर्फ एक ही शेड है. आई डोंट नो वो कौन से स्किन टोन के लिए, वेदर इज फॉर लाइट स्किन टोन, फेयर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन और डार्क स्किन टोन. सो इनको एटलीस्ट हर एक स्किन टोन के लिए पिंक, येलो एंड न्यूट्रल अंडरटोन रखना चाहिए फाउंडेशन में. सो दैट इज द कॉन नंबर 3. Then the con number 4 is the price range. I won't call it very costly, but if I compare them to the other Plum products, the most of their products are under 500 rupees. The makeup range I'm talking about specifically, but this one will cost you for rupees 700. So this is bit higher than that because it contains again 30 ml of product, which is a normal quantity for foundation. तो मुझे लग रहा था ये 500 के आसपास इसका प्राइस होगा. They have extended it like 200 rupees more. So that can be a con. Alright, so if I talk about the concealer now, so इसके जो pros है वो almost similar है जो फाउंडेशन के थे, except 1 और 2 जो कि इनका जो कवरेज वाला बात मैंने बोला. सो ये जो कंसीलर है ना, इसका कवरेज फाउंडेशन से थोड़ा कम है. लाइक एज यू कैन सी इन माई वीडियो, तो मेरा जो मैंने इसीलिए कम्प्लीटली एक साइड पे फाउंडेशन अप्लाई किया था, एक साइड पे कंसीलर अप्लाई किया था. बट जो कंसीलर वाला साइड था वो इतना ज़्यादा मुझे कवर किया हुआ नहीं लग रहा था. जैसे कि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि डार्क सर्कल्स है आपके, जो भी आपके स्पॉट्स है वो इससे कवर हो जाएंगे, तो वो कवर नहीं होता है इससे. सो दैट इज द वन पॉइंट विच आई एम नॉट इंक्लूडिंग इन प्रोज, दैट विल कम इन कॉन्स. लाइक आई डोंट हैव एक्सट्रीमली डार्क अंडर आइज, बट स्टिल यू कैन सी मेरे अंडर आइज ने अच्छे से हाइड नहीं किया हुआ है. यहाँ के भी थोड़े से कम लग रहे हैं, बट ये यू कैन सी दिस लाइन राइट, यहाँ का जो आपको डार्कनेस दिख रहा है, ये तो मैंने कंसीलर से किया था ना, और कुछ नहीं किया था, तो ये कम्प्लीटली मेरा विजिबल है. अदर देन दैट इट्स अगेन लाइट वेट, हाइड्रेटिंग एंड गिव्स मीडियम कवरेज. उसके अलावा इसमें और जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स है लाइक पैराबेन्स, फैलेट्स एंड बाकी सारे जो केमिकल्स है वो इसमें नहीं है. दिस इज अ क्रूअल्टी फ्री वीगन प्रोडक्ट. ह्यालुरोनिक एसिड के साथ साथ इसमें क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई भी है. तो जो आपका पफिनेस है उसको वो कम करता है. वो आपको इमीडिएटली इतना रिजल्ट नहीं दिखाएगा, बट आफ्टर यू सेट योर आईज ना, तो आपका पफिनेस आपको डेफिनेटली थोड़ा सा कम होते हुए दिखाएगा. जब आप कंसीलर लगाओगे भी तो आपको थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन होगा बिकॉज इसमें क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है. देन द अदर प्रो इज इसका एप्लीकेटर. इसका जो नॉर्मल डो फुट एप्लीकेटर है, it's very easy to apply near your inner corner of your eyes or outer corner of your eyes. So applicator is again very nice. And the other pro is it's suitable for all Indian skin tones, but again when it comes to shade range I have problem with this. And the last pro I specifically want to mention here is this product is fragrance free. ये फाउंडेशन के जैसा नहीं है. फाउंडेशन पे उन्होंने मेंशन किया है इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री, बट उसमें फ्रेग्रेंस है, वैसा कंसीलर में नहीं है. कंसीलर इज अ फ्रेग्रेंस फ्री. Alright, so now talking about the cons. The con number 1 I have found with this concealer is the coverage is very minimal. Like, so even the foundation coverage is better than the concealer, and given the fact that concealer हमेशा full coverage का ही होना चाहिए, and they have also mentioned that in their website that it's a full coverage concealer, but it's not a full coverage concealer. अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क अंडर आईज है या बहुत डार्क स्पॉट्स है आपके फेस पे, तो ये उसको हाइड नहीं करेगा, आपको बहुत सारा लेयर अप करना पड़ेगा. सो दैट इज द कॉन नंबर 1. देन कॉन नंबर 2 आई नीड टू टॉक अबाउट द शेड रेंज. इवन दो दे हैव लाइक कंसीलर के बहुत सारे शेड्स नहीं होते हैं, आई अग्री, बट स्टिल दे हैव ओनली 5 शेड्स. दे हैव ओनली 1 शेड फॉर डीपर complexion, that is like what is the shade name, 135P, and it can go with NC40 but not deeper than that. So they need to be more inclusive even if it comes to the concealer. अदर देन दैट इट्स अ नॉर्मल कंसीलर. ये बिल्कुल भी आपके फाइन लाइन्स में क्रीज वगैरह नहीं करता है. लाइक मैंने उसको लगाया, ज़्यादा कुछ सेट नहीं किया, नॉर्मल कॉम्पैक्ट सेट किया, बट एक कहीं से भी मेरे क्रीज नहीं कर रहा है अंडर आइज में. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. सो देर आर ओनली लाइक दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स. इसमें ज़्यादा कॉन्स नहीं है, वॉट एवर इट इज़ आई टोल्ड यू. सो द फाउंडेशन विल कॉस्ट यू फॉर ₹699, दैट इज ऑलमोस्ट 700, एंड द कंसीलर विल कॉस्ट यू फॉर ₹599, दैट इज ऑलमोस्ट 600.
but you can get this on discount by using my code Amrita15 on Plum's official website, that is plumgoodness.com. If at all you want to try it out और इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट नहीं भी चल रहा है, अगर इसके ऊपर कोई डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है लाइक 10% 15% ऑफ, उसके ऊपर आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो आपको और 15% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा. सो दैट अभी जैसे उनका 15% ऑलरेडी चल रहा है एंड यू आर अप्लाइंग माई कोड तो आपको 30% ऑफ में मिलेगा. सो डोंट फॉरगेट टू शॉप फ्रॉम माई कूपन कोड, दैट वे यू विल सेव लॉट ऑफ मनी. So all in all, if I recommend you this product or not, definitely you can try it out. It's a very nice product for, you know, dry skin people. It's very hydrating and it gives you matte finish as well, like semi matte finish. So you can definitely try it out. For oily skin people, it's amazing product. I have oily skin and I don't regret buying any of these. I like concealer and foundation also, and I'm sure I'm going to use it through and through. Like ये पहले खत्म हो जाएगा, I know that. Keeping the mind pros and cons, I will still recommend you guys to try this out. You don't have like foundation तो आप एक ही buy करते हो, right? So you can try it out. It's not very exaggerating, like बहुत अच्छा foundation ऐसा भी नहीं और बहुत बुरा foundation ऐसा भी नहीं है. It's like neutral for me. This review is neutral for me. So yeah, if you ask me, if I buy it again, I will definitely buy it again if the bottle gets over. And the reason behind that, it's very lightweight. I have oily skin, I have super oily skin, and I like using lightweight products like lightweight moisturizer, lightweight foundation. So that's why, that's the only reason I'll buy this product again. And that's all for today's review video, guys. I hope you found it helpful, and if you do so, then please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Don't forget to participate in the giveaway. It will be valid till 3rd of December. I'll announce the winner on 3rd of December, and I shall see you super soon in my next video. Till then, watch my other videos. Take care and bye bye.